words but don't use any local language. So we have invited you here for the purpose of career counseling. So first of all, be cool. We are just friends, right? So now we are not teacher and students, right? We are just good friends, and we will be doing some interaction. Okay? So if you are not able to speak in English, you can speak in Hindi also. But try to speak English as much as possible. But if you are not able to, find out the appropriate word, you can spell out in Hindi as well. So you people are from MCA? MCA Smart. So what is the difference between brilliant and genius and smart? थोड़ा जोर से बोलो. क्यों? Why we have segregated this section? That you first have to understand. Many people are talking about, sir, I don't know how it is differentiated. Smart, brilliant, and You know? Okay. Brilliant means the best students having highest marks in their career. Am I right? Then comes genius. They are little lesser than brilliant. Then comes smart. Okay? They are little lesser than brilliant and genius. Why we have created this? Do you know the idea behind it? no, sir. The idea was to give you special concern. See, those who are securing 70%, 80%, it seems that they are self-motivated. Right now, those who are scoring around 65%, 60%, they are average. So we need to give little more focus than brilliant. And when we talk about smart, we have to give them much more attention, because they require some sort of mentorship, right? So under some mentorship, we have given even special instruction to the teachers that they should guide you one by one, right? Why? Because we are interested in your profile, and we are trying to make you one step higher. So once you complete your post-graduation degree, by the time you will be competing with whom? Genius and brilliant, right or not? Yes or no? Yes, So sir. that is the reason behind we have segregated into 3 groups. Okay. So now if we have just randomly done this, what would happen? The thing is like that, हम लोग अगर random कर देते तो क्या होता, कुछ अच्छे बच्चे कुछ बुरे बच्चे सब मिलके एक जगह रह जाते, तो हम लोग किसी को भी पर्टिकुलरली फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि टीचर लोग उन्हीं के साथ जाते हैं जो फर्स्ट बेंच पे बैठते और अच्छा बोलते, उन्हीं को पढ़ा के चला जाते हैं। मगर जो एक क्लास में गिने चुने कुछ बच्चे रहेंगे, उनकी तरफ और नजर ही नहीं जाएगा। ये है कि नहीं? सो दिस हैज बीन क्रिएटेड विद अ स्पेशल focus. Okay. Now, I would like to tell you one small example. Okay. As it is a career counseling session, so we will be telling you the different career options for you. Okay. Now, we will not tell you, because so many times we are just telling you, you answer us. Okay. Now there is a rice, plain rice. You know plain rice? Yes, sir. Right? So I have given you one plate of plain rice. Okay. How would you take it? Like plain rice taking a bit awkward, no? Yes. Without dal. Okay. So let us suppose I don't have that arrangement to cook so many items. So instead of that, what I do is that I put some onion, right? I put some biryani masala into it, and I make it as a veg biryani. Now you differentiate. You have a plain rice, one hand, and one hand veg biryani. Which one you would prefer? Veg biryani, very good. Now, if I put some eggs into it, okay, how it will taste? It's much better than veg biryani. Yes, sir. Now I put some chicken into it. What will happen? Better than Better than the rest of the items? Okay. Now up to that,
we will stop. Then I will extend it to another aspect. Now what you understood out of this? हिंदी में बोलो अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल। मैं एग्जांपल क्यों दिया? अगर ये पकड़ लेते हो, that means you are not less than brilliant and genius. मैंने ये एग्जांपल दिया किस लिए दिया? Related to your career. मैं अभी क्यों भी दे दिया? मतलब कुछ मैंने हमारे कैरियर में कुछ हार्ड हो जाता है, एक्स्ट्रा स्किल मिल तो अच्छा होगा। Excellent, excellent, super. तो मतलब अभी तुम लोग क्या हो? Just white rice, plain rice, है कि नहीं? तुम्हें लगता है कि तुम्हें भी जॉब मिल जाएगी जिस हालत में तुम हो? मिलेगा क्या? So we are learning now. You are learning now. So you are just like flat white rice. So what you have to do? You have to first add some spices. Spices means the you know the foundation. जो तुम्हारे टीचर लोग पढ़ाते हैं क्लास में, वो है spices. ठीक है? पर वो उतना काम नहीं करेगा जितना काम बाकी के गार्निशिंग डालने से होता है। तो बाकी का क्या है? एक क्या है? Extra skills. वेरी गुड, एक्स्ट्रा स्किल्स। जैसे कि तुमने एक सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में, पाइथन में कहीं से अच्छा ट्रेनिंग ले लिया, एक सर्टिफिकेट ले लिया, अच्छा सर्टिफिकेट, ग्लोबल सर्टिफिकेट तो बेहतर है, नहीं भी होता है तो चलेगा। तो तुमने क्या किया? एक स्किल कर लिया। अभी तुम कौन से सेमेस्टर में हो? फर्स्ट सेमेस्टर में। सो यू एक्वायर वन स्किल इन दिस सेमेस्टर। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? राइस you have already, then masala which your teachers has already given you, and then you are putting some eggs on it. Then come chicken. What is that? What is that? Opportunity to देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, फ्लैट राइस तुम लोग हो, स्पाइसेस तुम्हारे टीचर लोग दे रहे हैं, उसके बाद तुमने अंडा डाल दिया जो कि तुम्हारा एक ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट, उसके बाद आप क्या कर सकते हो? जो चिकन के इक्विवेलेंट हो। Certificate. जॉब तो एक प्रोडक्ट है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जॉब, वी आर टॉकिंग अबाउट करियर। Certificate. सर्टिफिकेट तो मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया जो कि अंडा है। क्या होगा? समथिंग लाइक प्रोजेक्ट इंटर्नशिप, है कि नहीं? नहीं है नहीं। क्यों? प्रोजेक्ट इंटर्नशिप करने से क्या हो जाएगा? क्या डिफरेंस होगा? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जब भी तुम्हारा इंटरव्यूअर, एम्प्लॉयर तुम्हारा सीवी देखेगा, he will understand कि you have some practical exposure. So now you are distinguished than other students because you have done, you have already you are a flat rice, you have put spices, then you have anda, then you have chicken, right or not? Now you are absolutely ready for the job. Now again we will extend the story. Okay? Now what kind of biryani you will prefer? A normal biryani or a biryani having beautiful aroma, delicious aroma? मतलब तुम्हारे सामने एक प्लेट नॉर्मल बिरयानी रखा हो जो तुम्हारे जो कॉलेज के सामने जो बिक्री करता है वो 100 रुपये लेता है ना। अब मैं रेस्टोरेंट से 200 रुपये का बिरयानी मंगवाऊंगा और मैं तुमको दूंगा, कौन सा तुम लोग? 200 डिलीशियस। तो वो क्या है जो तुम्हें ऐड करना है? ये बोल दे तो मैं तुम्हें भी 100 रुपीज दूंगा। सीरियसली है मेरे पॉकेट। ब्रेनस्टॉर्म करो। हाँ Work experience. नहीं, वर्क एक्सपीरियंस, तुम तो अभी फ्रेशर हो, वर्क एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? सोच के बोलो। अब वो एरोमा कहाँ से लाओगे? Character like honesty. ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत मैच किया, 10% 5%। ऐसा क्या होगा जो तुम्हें नॉर्मल बिरयानी से डिफरेंट बना देगा? सोचो, तुम्हें और मुझ में डिफरेंस कुछ समझ में आ रहा है? क्लू दे रहा हूँ, क्लू। तुम्हें और मुझ में क्या डिफरेंस है? हम लोग आमने सामने बैठे एज ए गुड फ्रेंड, वी आर डिस्कसिंग। सो व्हाट इज एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी? इज देयर एनी डिफरेंस व्हिच यू फील? skills. Yes. Communication. कम्युनिकेशन स्किल, राइट? सो एरोमा कहाँ से आया? अब तुम और मैं बैठा हूँ, तुम जॉब के लिए जाओगे और मैं जॉब के लिए जाऊंगा, सो ऑफ कोर्स दे विल
select me because I am feeling much confident than you. Yes or no? You are not. See, I am not trying to criticize you. मैं just समझाने का कोशिश कर रहा हूँ. तुम्हारा जो मेरे एज में जाने से तुम लोग भी ऐसे ही बोलोगे, वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा. बट तुम्हारे स्टेज में भी अभी अगर तुम्हें एक एमएनसी जाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एक 100% रेडी प्रोफाइल बनाना पड़ेगा विथ अ पॉजिटिव एटीट्यूड विथ गुड कमांड ऑन कम्युनिकेशन स्किल. तो क्या हो जाएगा? तुम्हारे क्लास के जो बच्चे हैं उससे तुम एक कदम आगे निकल गए. मीन्स दे आर द नॉर्मल बिरयानी and you are the biryani I brought it from a restaurant having delicious taste and aroma. So अभी तुमको क्या करना है? So अभी जो मैं बोला इसके बाद अभी तुम्हें क्या करना है फ्यूचर में? नेक्स्ट 6 months में क्या करना चाहोगे? Learning new technology. वेरी गुड. प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होना है. टेक्नोलॉजी सीखने के बाद क्या करना है? किसके लिए काम करना है? जैसे तुम स्किल सीख गए, प्रोजेक्ट भी कर लिए, फिर तुम्हें क्या किसके लिए काम करना पड़ेगा? अभी मैंने बोला था, अभी तो मैंने बोला 3 चीज था ना, अंडा, मसाला, अंडा एंड चिकन. तो अभी तुम्हें चिकन की तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि अभी तुम्हारे पास स्किल है, तो तुम्हें 2 पैसा इनकम भी हो जाएगा और तुम्हारा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, है कि नहीं? सो गॉट इट. सो अभी तुम्हारा नेक्स्ट 6 months का टारगेट क्या है कि एक स्किल एक्वायर करना है, सर्टिफिकेट लेना है, उसके बाद एक प्रोजेक्ट में काम करना है और उसके बाद 1-2 इंटर्नशिप कर लेना है, जिससे पॉकेट मनी भी निकल जाएगा, आईनॉक्स वगैरह में मूवी भी देख पाओगे, केएफसी में खाना भी हो जाएगा. इतना तो देते हैं, 4,000-5,000 रुपये तो देते हैं. हम लोग भी दे रहे हैं. हमारे कॉलेज मेरे अंडर में इंटर्न से दे आर गेटिंग 5,000-6,000 रुपीज. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे अंडर. सो यू गॉट ऑलमोस्ट ऑल द थिंग. यस और नो? नाउ भूपेश सर अभी तुम्हें इंडस्ट्री के क्या एक्सपेक्टेशन है वो तुम्हें बताना है. तो अकॉर्डिंगली तुम अपने आप को अलाइन करो. मैंने तुम्हें अभी 6 months का बता दिया कि क्या करना है. शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों बता दिया. अब भूपेश सर तुम्हें थोड़ी देर के लिए बताएंगे कि इंडस्ट्री क्या एक्सपेक्ट करते हैं तुमसे और तुम्हें क्या डिलीवरेबल देना है. ठीक है, चलिए भूपेश सर. I will give you one example first. I will give you a problem and you will tell me the solution for it. Suppose I give you one person who will go to cook food for you. You are staying in mess or in hostel. सर थोड़ा आवाज से वहाँ तक कैसे? Just think that you are staying in a mess. Okay? So you are not going to cook yourself food. So you want to hire a cook. Yes? So I send one person. I told him that he will going to cook for you. So what are you going to do with him? We will make ourselves to for cooking. सर तीनों कवर हो रहा है ना? He has come. Now वो अभी तुम्हारे पास आया पास आया है. है. इन्होंने भेजा, वो तुम्हारे पास आया है. अभी देखा है कि क्या तो क्या किधर है कोई अभी तो वो बोला मैं कुक में खाना बना सकता हूँ. ठीक है, सर्टिफिकेट भी लेके आके दिखा देता. बोलते हैं क्या है, बोलते हैं कपूर क्या नाम था वो, संजीव कपूर वाला से मैंने खाना बनाना सीख भी लिया और सर्टिफिकेट भी लेके आया हूँ. तो आप क्या वो सर्टिफिकेट और उसको देख के इमीडिएटली खाना खाने के लिए पता हुआ बोल दो कि क्या वो खाना बनाना दो. बना दो और ले जाओ, तो इतना पैसा ले लो, करोगे क्या करोगे मुझे वो बताओ. सुनो, मैं सीन को क्रिएट कर दे रहा हूँ. सोचो कि तुमने भूपेश सर को बोला कि हमको एक कुक चाहिए, हम लोग मेस में रहते हैं, हम लोग खाना बना नहीं पा रहे हैं, हमसे नहीं हो पा रहा है, आप एक कुक जुगाड़ करके दीजिए. तो वो तुम्हारा एक फ्रेंड है, तो उन्होंने क्या किया, कुक तुम्हारे घर में भेज दिया. वो बोला, वो कुक आया तुम्हारे घर के सामने, तुम दरवाजा खोले, उसने कहा कि सर मैं आया हूँ आपके यहाँ पे नौकरी करने के लिए, मैं कुक हूँ, क्या मुझे आप अपॉर्चुनिटी देंगे? और वो बकायदा सर्टिफिकेट होल्डर भी है कि उसके पास एक सर्टिफिकेट भी है, वो कोई कैटरिंग स्कूल से सीख के आया है. अब तुम क्या करोगे? क्या करोगे? उसके बाद तुम्हारा रोल क्या है? तुम्हारा रोल क्या है? उसको क्या पता है हम ये जानना चाहेंगे. वेरी गुड. वेरी गुड. यही मैं तो उसको इंटरव्यू करोगे. इंटरव्यू करो. बेशक उसके पास सर्टिफिकेट हो, है. बेशक भूपेश सर तुम्हारे पास भेजेंगे, है. भूपेश सर तुम्हारे अच्छे फ्रेंड्स हैं, हाँ. तब भी तुम उसका एक इंटरव्यू तो करना चाहोगे. Yes? और साथ साथ में उस इंटरव्यू में तुम बोलोगे आज तुम खाना बना के हमको खिलाओ. बोलोगे कि नहीं? बोलोगे. एक डेमो आइटम बोलोगे.
बोलोगे तो वो एक खाना बना के तुम्हें डेमोन्स्ट्रेट करेगा कि वो खाना बना सकता है नहीं। ठीक है, अभी तो सर जो बोले कि जो चिकन अंडा जो भी, समझे कि नहीं, नाउ ये जानने के बाद यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट। मतलब ये सब कुछ एक्वायर करने के बाद भी तुम जब कंपनी में जाओगे दे विल टेल यू टू डू इट प्रैक्टिकली इन फ्रंट ऑफ देम। और तुम लोग एमसीए हो तो लोग क्या बोलेंगे चिकन बनाने के लिए, क्या बोलेंगे कोडिंग लिखने के लिए। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो तुमको वहाँ बैठ के कोडिंग लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करोगे तुम? जो इतना दिन से मैं बता रहा था कि इतना दिन का जो मेहनत है वो वहाँ रन रहा है। समझे ना? तो मतलब भूपेश से जो बोले इसका अगर डीप इनसाइट्स लोगे तो मैं बता रहा हूँ कि तुम खाली लोग दिखाने के लिए ऐसे मत कर देना, एक सर्टिफिकेट ले लेना, थोड़ा पढ़ लिया इसी के बारे में थोड़ा सीख लिया, चलेगा सर तो पढ़ा दी, ऐसा नहीं है। तुम्हें फिजिकली उसको उसमें मास्टरी करना पड़ेगा ताकि वो इंटरव्यू में देखो आप तुम जो भूपेश सर का जो कुक आया है, अब जरूरी नहीं कि ओडिया खाना बनाना जानता है, क्योंकि भूपेश सर आसाम से है, वो एक आसाम का बंदा को भेज दिया हो। अब तुमने बोल दिया कि हमको सुबह सुबह दालमा बना है, अब वो बना नहीं पाएगा, है कि नहीं? तो इसीलिए ऐसे तो तुम्हारा इरेलेवेंट क्वेश्चन कोई पूछेगा नहीं। तुम लोग एमसीए की हो, सॉफ्टवेयर तुम्हारा बेस है, तो तुम्हें प्रोग्रामिंग ही नहीं पूछेंगे। बट थिंग इज दैट यू हैव टू बी मास्टर इन एटलीस्ट वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ताकि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कुछ भी बोले तुम कर दो, ऑलमोस्ट कुछ भी बोले तुम कर दो, है कि नहीं? बोलिए। अभी मैं और बताता हूँ, इसी हिसाब से बताता था। अभी तुमने देखा कुक अच्छा डेमोन्स्ट्रेट किया, खाना बना लिया, ठीक है, और वो खाना अच्छा बनाता है, फिर धीरे धीरे तुम क्या बोलोगे, ये वाला डिश तुम बना सकते हो क्या? ये वाला डिश तुम्हारा क्यूरियोसिटी बढ़ेगा, तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ेगा, तुम्हें नया कुछ खाने को मन करेगा। आप वो कुक को अगर वो बनाना आता है तो बना देगा, अगर वो नहीं आता है तो क्या करेगा? यूट्यूब से देखेगा। हाँ, सीखेगा, एडेप्टेबिलिटी सीखेगा, सीख के फिर तुम वो बनाएगा, फिर तुमको खिलाएगा। क्यों? क्योंकि उसको अपना स्किल डेवलप करना है, उसको स्किल भी डेवलप करना है, अपना नौकरी भी बचाना है। तो जब तुम कंपनी में घुसोगे, इसका मतलब ये नहीं तुम जावा सीख के घुस गया, फिर कल आके अगर बोलेगा कि तुमको पाइथन भी करना है तो हाँ, सीख के लेकिन करना। बात ये है कि कुकिंग जो लोग जानता है ना, जानता है कि नहीं? बेस तो उसका बेस तो क्लियर है ना। समझ गए ना? अब वो चिकन बनाने का अगर मटन नहीं बना तो मटन भी वो बना लेगा सीख के। उसी हिसाब से पाइथन जावा तुम सीख लिया ना, पाइथन भी तुम सीख ले। क्योंकि एक चीज किसी को समझ में नहीं आता है, मैं तुमको आज बता देता हूँ, अगर हो सके मैसेज हर बच्चे को दे देना। देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ टफ नहीं होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे हम लोग लैंग्वेज में बात करते हैं ना, इसमें कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं? मैं समझा रहा हूँ ना, हम लोग जिस लैंग्वेज में बात करते हैं उसको बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज। और जब कंप्यूटर के साथ हम लोग इंटरेक्शन करना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो ये भी एक लैंग्वेज है। अभी मान लो मैं तुम लोग कोई साउथ इंडियन हो, अब मैं तुमको बोला तुम तेलुगु, तुम्हारा नौकरी हो गया कहीं बैंगलोर में, तुम्हें सीखना पड़ा वहाँ जाके मैंडेटरी है कि वहाँ ये लैंग्वेज सीख के, जैसे जर्मन में तुम जाओगे तो तुम्हें जर्मन लैंग्वेज पहले से सीखना पड़ेगा, बिकॉज दे डोंट स्पीक इंग्लिश। जर्मन में बात करेंगे तो तुम वहाँ जब उस कंट्री में पढ़ने जाओगे, नौकरी करने जाओगे, तुम तो लैंग्वेज सीख के जाओगे यहाँ से, है कि नहीं? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी वैसे ही है, वो एक लैंग्वेज है, ठीक है? तो हम लोग जैसे लैंग्वेज सीखते कैसे सीखते? ग्रामर सीखते हैं, पहले ग्रामर से शुरू होता है, वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी ग्रामर है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिंटैक्स, सेट ऑफ सिंटैक्स इज कॉल्ड द ग्रामर। तो उस प्रोग्राम उस लैंग्वेज को सीखने के लिए सिंटैक्स पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश को सीखने के लिए भी सिंटैक्स पढ़ना पड़ता है। सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है? आई एम अ गुड बॉय, हाउ इट इज फॉर्म? नाउन कहाँ होता है, एडवर्ब कहाँ होता है, एडजेक्टिव कहाँ होता है, डिटरमिनर कहाँ होता है? एक रूल है कि नहीं? ना तुम जो चाहो बोल सकते हो, आई बॉय एम आई होता है क्या? सो यू ऑलवेज फॉलो अ स्ट्रिक्ट रूल। पहले आएगा सबसे पहले ग्रामर में ये सिखाया जाता है कि सेंटेंस में वर्ड्स को कैसे अरेंज करोगे, वर्ब कहाँ आएगा, नाउन कहाँ आएगा, डिटरमिनर कहाँ आएगा, ये सब होता है कि नहीं? सिमिलरली तुम जब प्रोग्रामिंग लिखोगे, लैंग्वेज सीखोगे, तो एक लैंग्वेज है, उसका कुछ सिंटैक्स है, वो तुम्हें सीखना पड़ेगा। बाकी कॉमन क्या बता सकते हो? तुम चाहे पाइथन में कुछ लिखो, चाहे तुम जावा में लिखो, चाहे तुम सी में लिखो, कॉमन चीज क्या है? सिंटैक्स तो थोड़ा बहुत चेंज होगा, और कॉमन क्या है? लॉजिक। लॉजिक तो हर जगह पे सेम ही रहेगा। 2 + 2 = 4
उसका लॉजिक पाइथन में भी वही रहेगा, सी में भी वही रहेगा, जावा में भी वही रहेगा, मगर लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। तमिल में लिखोगे तो इतना बड़ा हो जाएगा, उर्दू में लिखोगे तो लेफ्ट साइड से लिखना पड़ेगा, इंग्लिश में लिखोगे तो उसका एक तरीका है, हिंदी में लिखोगे तो उसका तरीका है कि नहीं? गॉट इट? So this is the difference. So learning programming language is not a difficult task. You need to know the grammar of it. So once you know the grammar, rest of the thing is common to everyone. That's called logic. Logic is not going to change. Compound interest का rate मतलब जो formula है वो कभी change होगा क्या? Now it depends on you how you convert into C program or Python program or Java program. जिसका तुम syntax जानते हो, syntax में भर्ती करके लिख देना। जैसे हम लोग लिखते I am a boy following the grammar, सिमिलरली तुम वहां पे लिखोगे for I is equal to एक कंडीशन डाल रहे हो, ठीक है, तो उसकी लैंग्वेज में लिख दो, अदरवाइज वो लूप का लूप तो वही रहेगा, है कि नहीं? चलिए अच्छा, ये तो बोल दिए, ठीक है, तो वो सीख लिया, ठीक है, बस। Now let's come back. It will be backtrack now. I will going to do a backtrack. Okay. You people are right now not attending any classes, doing class to any doubt session. You people are all doubts are clear. How you are engaging yourself? How you are engaging yourself? Practicing, Practicing. Okay. How you are engaging yourself? मतलब आप क्या कर रहे हो अभी? आपके पास सुबह से लेकर शाम तक तो टाइम ही टाइम है. Yes, correct or not? You're staying in hostel. Then you have time. So how you are utilizing your time? How you are managing your time? And what are you doing? अगर ये आप नहीं करोगे सीरियसली तो ये जो सर अभी बोले, हम जो बोले ना, जितना चिकन मटन जो बोले, टूक का बोले ना, ये सब लड्डू हो जाएगा. तुम्हारे पास खाता पेन है? लाइफ में सीरियस कभी हुए हो? मतलब मुझे सीरियस होना है, मेरे पास और वक्त कम रह गया है, मुझे सीरियस होना है, मुझे कुछ लाइफ में करना है, खाता पेन है? निकालो पेन और खाता निकालो. मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें लाइफ में क्यों सीरियस होना है. कितना कम वक्त है तुम्हारे पास, मैं तुम्हें बताऊँ. ठीक है, बोला देना, पेपर लेकर आओ, बैठ बैठ. हमेशा जब भी करियर काउंसलिंग PICC में आते हो, bring a pen and paper. लो, लिखो तुम्हारा एज क्या है, लिखो 22. लिखो साइड में years. ठीक है. एक स्टैंडर्ड ह्यूमन बीइंग कितना साल तक जी सकते हैं इन स्टैंडर्ड कंडीशन? आजकल का पॉल्यूशन ये सब देखते हुए, हेल्थ कंडीशंस, 70 पकड़ लो, ठीक है, 70 लिखो, 70 इयर्स. तो उसमें से तुम्हारा 22 चला गया है, बाकी कितना बचा? माइनस करो, लिखो लिखो वहां पे लिखो 48 लिखो 48 इयर्स. 48 इयर्स मींस लॉट, है ना, काफी दिन है. उसको तुम कन्वर्ट करो महीने में. 48 इयर्स में कितना महीना होता है? करो into 12 कैलकुलेशन करो. 48 into 12 करो. 480 plus 96 कितना होगा? 480 plus 96 कितना होगा? 76, 576. कितना होगा? 966. Right? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ गलत किया हो. 48 into 12 years. 48 into 10 is 480 और 48 into 2 क्या हो गया तुमको? इतना मैथमेटिक्स में वीक हो तुम, लाइफ में करोगे क्या? 48 into 12. एक साल में कितना महीना होता है? 12. 576 लिखो. 576 मंथ्स तुम्हारे पास है. लिखो 576 मंथ्स तुम्हारे पास है. क्या ये ज्यादा लगता है? डर नहीं लग रहा है कि बहुत कम रह गया? अभी 576 अब 576 मंथ्स को 24 आवर्स नहीं वीक में कन्वर्ट करो. एक महीने में कितना वीक होता है?
4, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना कम लगेगा तुम्हारा जिंदगी। इस बार कैलकुलेशन गड़बड़ मत करना। तो 2400 अराउंड हो जाएगा देखो। तो मतलब तुम्हारे पास अब सिर्फ 2294 वीक बचा है। एक वीक कैसे दिखता है पता चलता है? कब संडे से मंडे हो, कब संडे से नेक्स्ट संडे आ जाता है। तो अभी तुम्हारे पास कितना दिन रहेगा, कितना सप्ताह रह गया? बस 2000 हफ्ता। यही तुम्हारा जिंदगी है। अब तुम्हें नहीं लगता लाइफ में सीरियस होना है? और उसको दिन में कन्वर्ट कर दोगे तुम्हें डर लग जाएगा। दिन में सो घंटे में कन्वर्ट करो। उसको दिन में कन्वर्ट कर लो, कितना दिन अब तुम जियोगे तुम्हें डर लगेगा। घंटा भी देर कर लो ना। 5 कितना बोलते देखो आस्ते आस्ते कमता जा रहा है। 576 ना वन ना 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 सर 576 मंथ है ना। हाँ, into 30 कर दीजिए। into 30 into 24 4 लाख घंटा। सिर्फ 4 लाख घंटे बचे। एक घंटा कैसे बीतता है? अभी तो तुम हमारे साथ बैठे हो, आधा घंटा हो गया, तो 4 लाख घंटा बीतने में कितना टाइम है? तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कुछ इम्पैक्ट करना चाहिए, इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहिए, सोसाइटी में ऐसा कुछ काम करना चाहिए, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, मर्सिडीज बेंच में घूमना चाहिए, है कि नहीं? आलिशान फ्लैट में, सी व्यू फ्लैट में 17th 18th फ्लोर पे बैठने का मन नहीं करता है? तुमको मैं एक चीज बताता हूँ। 576 into 30 into 8 हम 1,40,000 घंटा सोते भी हैं। उसको भी डिडक्ट कर दो, उसको भी डिडक्ट करो। 3 लाख भी नहीं है टाइम तुम्हारे पास बचा है। 3 लाख घंटा भी नहीं है। अभी डर लग रहा है फिगर देख के? हाँ, मरने का डर आ रहा है? तो लाइफ जी लो, क्यों वेस्ट कर रहे हो? पढ़ाई करो ध्यान से, और जल्दी जल्दी पढ़ाई खत्म करके नौकरी लो, अच्छा नौकरी लो, ठीक है? मुंबई वगैरह में नौकरी लो, जुहू सी बीच के बगल में एक फ्लैट ले लेना, लाइफ सेट। सही, कहीं पे मॉडल के साथ शादी भी कर लो। This is how we plan actually. This is how we plan. Guys, try to understand one thing. When we entered the days, nobody has told us how to plan our life. And I tell you, you are really in a good college where we are, giving this much of effort for you. To tell you कि आप Because this college promotes all this concept. But हमारे टाइम पे, हमारे वक्त पे ऐसा कोई नहीं था जो हमको बिठा के ये सब बातें बोला। अभी आप लोग से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली, कि 200 बच्चे से नहीं, आई वाज एक्सपेक्टिंग 30-40 बच्चे आए ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में। सीतानाथ सर को मेरे को बोले, सर हम लोग भी फ्री है, हम कुछ करना चाहते हैं, हमें सब कुछ ट्रेनिंग करा कुछ दीजिए, ट्रेनिंग करा दीजिए, हमें कुछ कुछ सिखा सीखना है। दीजिए। लेकिन कोई नहीं है, सब अपना घर में चला गया। ठीक है, जो हॉस्टल में जिसका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, दिन भर तो बैग को लेगा और घूमते हुए रहेगा। कर लो ऐसे थी। क्या कर रहे हो लाइफ में? डू नॉट वेस्ट योर टाइम। Right. ये दिन चला जाएगा, कभी वापस नहीं आएगा। लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल करोगे, ठीक है? एक जॉब के लिए ढूंढोगे, अच्छा जॉब मिलेगा नहीं, सबस्टैंडर्ड जॉब करोगे, कम पैसा मिलेगा और बेइज्जती भी होगा, ठीक है? Try to understand, 22 साल तक तुम पढ़ रहे हो, 22 साल तक लोग मतलब ना अपना नौकरी करना स्टार्ट कर देते हैं 21 साल से। मैंने हमारे टाइम पे आई स्टार्टेड वर्किंग एट द एज ऑफ 23। ठीक है, 16 साल में मैट्रिक, 18 साल में हायर सेकेंडरी, 22 साल में इंजीनियरिंग पास करके इंजीनियरिंग मेडिकल 22 साल मैक्सिमम 23। वो तो फाइनल ईयर। आजकल तो स्पीड फाइनेंस में भी नौकरी मिल रहा है, 21 साल से पैसा कमाना शुरू करते हैं। ये है इंडिया, राइट? फॉरेन में जाओगे तो लोग 14-15 साल से, फॉरेन में तो लोग 14-15 से 14 से कमाते हैं। कमाना मतलब पेरेंट्स का रिस्पांसिबिलिटी होता है बच्चों के प्रति क्लास 10। उसके बाद वो लोग माँ बाप कभी बच्चों को पैसा नहीं देते फॉरेन कंट्रीज में। दे अर्न बाय देमसेल्फ एंड दे नीड। हमारे यहाँ का कल्चर है कि हम लोग 25-26 साल 27 साल तक भी हमारे बच्चे को बच्चे ढकेलते रहेंगे, ढकेलते रहेंगे। का बच्चे तक हम लोग संभालते हैं। ठीक है? लेट अस नॉट वेस्ट टाइम, गो एंड स्टडी हार्ड, फोकस करो अपने करियर पे। लाइफ सबको अच्छे से जीना है और इसका हक है हमें, ठीक है? तो तुम लोग समझ गए क्या करना है, उसी हिसाब से प्लान करो। जो भी असिस्टेंस चाहिए हमारे पास आओ, वी आर रेडी टू गिव यू ऑल द असिस्टेंस। और अपने फ्रेंड्स को भी ये सब बातें बताओ, उनको भी मोटिवेट करो कि वो लोग पढ़ाई पे ध्यान दें, क्लासेस करें। तुम लोग पैसा दिए हो कॉलेज को,
उसी से तुम्हारा क्लास हो रहा है। मास्टर क्लास जा रहा है मगर तुम नहीं जा रहे, पर पैसा किसने दिया? तुमने, तो तुम क्लास नहीं जा रहे, है कि नहीं? तुमने स्पोर्ट्स के लिए पैसा दिया, तुम खेलते नहीं हो। तुम हॉबी क्लास के लिए पैसा दिया, तुम जाते नहीं हो। लाइब्रेरी के लिए तुम पैसा दे रहे हो मगर लाइब्रेरी से एक भी बुक नहीं लिया आज तक। 5 बुक ले सकते हो। बस सिर्फ एक चीज करते हो जो कि एसेंशियल है, करना चाहिए, इसलिए कैंटीन में पैसा दिया तो खाते हो। और वो इतना एसेंशियल नहीं था जो एसेंशियल अभी तुम्हारा करियर बनने के लिए चाहिए था, है कि नहीं? सोच के देखो, जिस जिस खाते पे तुम लोग कॉलेज को पैसा दिए हो, उस कौन सा खाता में से तुम लोग यूज किए हो एक्सेप्ट खाना और हॉस्टल में रहना? कॉल करूंगा तुम्हें, बताओ, कुछ नहीं। करो, लाइब्रेरी जाओ, बुक्स पढ़ो, बुक्स पढ़ना जरूरी है। कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, तुम बोले, वो पूछेंगे तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन है, तुम बोलोगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। पूछेंगे बुक का ऑथर का नाम क्या है, तुमको पता नहीं समरविले कौन है, तुमको पता नहीं राजीव मॉल कौन है। राजीव मॉल कौन है? वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फेमस ऑथर है, बुक लिखा है। समरविले कौन है? नहीं, ये तो मतलब तुम सी का बताओ तो कोई ऑप्शन करना तो ध्यान मतलब वो बोलते हैं ना क्लास में, फादर ऑफ, हाँ, बुक सी का बुक इसके श्रीनिवास एक अच्छा बुक बोलो, फॉरेन वाला बुक बोलो जिसका नाम है। मैं जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बोला तो मेरे मुंह से समरविले पहले निकला। डेटाबेस गॉडफ्रेड करके सबसे मतलब एकदम फेमस बुक है, मतलब वो तो नहीं तो जाता। मैथमेटिक्स का बुक्स का नाम याद है कि नहीं? डीएम का बुक का नाम है। मैथमेटिक्स का बुक्स का नाम कौन लिखा था? जो रेड कलर का इतना मोटा बुक होता है, क्रेजिक सुना है? शिट, डीबीएस का बुक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का बुक कौन उठा है? कभी देखे भी नहीं है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर जेकी हमेशा बोलते हैं ना, द फेमस बुक। ऑपरेटिंग सिस्टम सिल्वर्स्टर डेल्विन फेमस बुक। डीबीएमएस नवाटे हम सब पढ़े थे, अभी भी हमें याद है, हमें भी याद है, क्योंकि हम दिल से किए थे। सी लेटर सी कनिटकर बालागुरु स्वामी, ये तो इंडियन राइटर है। राइट, फॉरेन राइटर सर बोले, मतलब समरविले है, गॉडफ्रेड है, और ये भी है, क्या कहते हैं ना, आई फॉरगॉटन, जावा जो लिखा है ना, एक बंडल है, क्या नाम है, हर्बर्ट सिंह जो है, उसने भी तो लिखा है। नेटवर्क बुक पढ़ोगे, फेडरल है, तानेनबाम है, ये सब तो हम नहीं जानते। मस्त वो सब बुक पढ़ोगे, फंडा क्लियर हो जाएगा एक बार में। नेटवर्किंग का सब सीख जाओगे। इंडियन राइटर ही है, आईआईटी मुंबई थांबे हैं, राजीव माल कलकत्ता है, आईआईटी खड़गपुर, जतिन डेका कंप्यूटर आर्किटेक्चर, क्या कहता है, आईआईटी गुवाहाटी, हाँ, ओएस वो क्या नाम था इसका, आईआईटी गुवाहाटी का डायरेक्टर है, फेमस, ही इज वेरी फेमस। ओएस फेमस आल्सो, धामडेर आल्सो फेमस फ्रॉम मुंबई। हम लोग सब नहीं जानोगे तो कैसे होगा, और एंटीक्लेम भी करोगे ठीक है, चलो, विल सी यू अगेन। जब मन करता है काउंसलिंग का जरूरत है, मेरे पास आ जाना। सुनो, एक बात है, समझो कि नहीं, मैं एक चीज बताता हूँ तुम लोगों को, ये सब कुछ भी जरूरत नहीं है, जानते हो कि ना, अगर तुम्हारा एक ही तुम लोग माइंडसेट रखो कि हम यहाँ आया है तो कुछ करके जाना है। वो जैसे सब टिकट पर बोलता है, आया हूँ तो कुछ लेके जाऊंगा, ताकि कुछ दिन में बोल रहा था, और मैं एकदम टपुरी भाषा में बोल रहा हूँ, पैसा वसूल करके ही जाना। पैसा वसूल करके ही जाना। मैं मजाक नहीं कर रहा हाँ। हूँ, है कि नहीं? है। पैसा दिए हो, ये तुम्हारा फंडामेंटल राइट है कि तुम पढ़ोगे, टीचर से पढ़वाओगे, तुम यहाँ से नौकरी लोगे, फिर जाओ। जाओ, बिकॉज जिंदगी बना लेगा। होता है कि नहीं? जब रेस्टोरेंट में जाते हो, याद करो, जब रेस्टोरेंट में जाते हो, तुम्हें खाने का इच्छा नहीं भी होता है, तो जो पान मधुरी ସେଇଟା कोई जबरदस्ती नहीं कि तुम खाई दियो, काहे तुम पैसा देছো ना, सो गोटे गोटे जिनिस तुम खाई के आसो, যদি ন খাই পারছো তুমি প্যাক করে কে নিয়ে যাও, যাও কি না? ধরো বিরিয়ানি করে প্লেট অর্ডার করছো, খাই পারলো না, তুমি কোন কো ছাড় দিকে পড়ে আসছো, সেটা নাই, पैक করে के आना तुम पछड़े खा दो। जिस दिन तुम लोग ये रियलाइज करोगे कि सर लोगों ने डाउट रिलेक्सेशन इसलिए दिया है कि हमारा करियर नो ये नहीं है तुम लोगों को बिठा के यहाँ पे टॉर्चर करने के लिए, ये माइंडसेट जिस दिन चेंज करो, हट जाएगा सब, शुरुआत से सब नया सिरे से शुरू शुरू है। और ये मत करो कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। हाँ। अगर तुम बाकी लोगों को देखोगे ना, तो तुम क्राउड में चले जाओगे, तुम्हारा कोई आइडेंटिटी नहीं होगा। तुम वो करो जो उस क्राउड से तुम्हें अलग कर देगा। तुम अकेले में दिखोगे ना तो दिख जाओगे। इसलिए शेर का भी
झुंड में नहीं घूमते, अकेला घूमते। पर देखो बकरी देखो, काऊ देखो, डियर देखो, सब झुंड में घूमते हैं। सब मगर एलिफेंट भी हाँ एलिफेंट भी झुंड में घूमते हैं, मगर शेर को देखो हमेशा अकेला। बोलते ना, ईगल को देखो हमेशा अकेला, ईगल कभी भी एक साथ 10 ईगल नहीं जाएगा, एक ही ईगल जाएगा एक टाइम में, जाता है ना। मगर दूसरे पंछियों को देखो एक साथ, पिजन्स को देखो एक साथ, कबूतर एक साथ घूमते रहते हैं, हाँ? है कि नहीं? तो वही अलग होता है और स्पेशल होता है जो अकेले में जाता है। क्राउड बोल रहा है क्लास नहीं करेगा तो तुम उसके साथ हो जाओगे, यू विल बी द लूजर। तुम बोलो नहीं मैं जाऊंगा क्लास, मैं तो पैसा दिया हूं भाई, माय फादर हैज पेड फॉर दिस, मैं क्यों नहीं जाऊंगा, ये मेरा फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, मैंने पैसा पेमेंट किया तो मैं क्लास करूंगा। और चलिए। why you are माने allowing somebody to be the authority of your life? यस, तुम सोचो तुम्हें क्या करना है। क्यों तो थोड़ा सीएम बोलेगा क्लास नहीं करेगा, कोई आके बोलेगा क्लास नहीं करेगा, क्यों? बात बोलो, Why क्यों? you are making them the your or the authority of your life? They are manipulating you, they are driving you. No, it should not be. You think what you want and accordingly you do. मैं एक ही मंत्र बोला, अगर मास में जाओगे तो खो जाओगे, अकेले जाओगे भटक भी गए ना तो भगवान है रास्ता दिखाने के लिए। और कुछ भी करने का लेकिन छुएगा नहीं। सीरियसली मतलब तुम लोग ना मुझे समझ में ये रियली नहीं आते। मैं आज सिद्धांत सर से हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, ये सब फंडामेंटलिटी अगर दिमाग में घुसाओगे ना, समझे, एक तुम अकेला निकल जाओ, एक तुम अकेला निकल जाओ, तुम अकेला निकल जाओ, समझे कि नहीं? सब अपना अंदर करो ना तो सब क्लासरूम में भी आएगा, सब पढ़ाई भी करेगा, एक दूसरे को तुम लोग क्या करोगे ना, तो हेल्प भी करना शुरू करोगे और तुम लोगों का फोकस एक ही होगा। जो सर जो बोल रहे था ना कि यहाँ से नौकरी लेके ही जाना है, जिंदगी बना के ही जाना है, पैसा वसूल करके जाना है। और एक बात याद रखो, जिस दिन कॉलेज में इंटरव्यू होगा ना, जो तुम्हारा रूममेट है सबसे बेस्ट फ्रेंड है, वही मतलब वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है उस दिन। हाँ। है कि नहीं? तुम्हें नौकरी पाने के लिए तुम उस दिन उससे पंगा लोगे या नहीं? तो भी दोस्ती का है। दोस्ती नहीं कर। जब एक दिन तुम्हें उसी के साथ लड़ाई करने के लिए उतरना है, क्यों तुम एक काम करो ना, जिस दिन इंटरव्यू होगा तुम अपने सारे दोस्त को पहले भेज दो, जा तू नौकरी कर ले, मैं लास्ट में बैठूंगा, सब में तुम लोग पहले चल जाओ, वो तू जा, आज एक कंपनी है, अच्छा तेरा हो गया, तू आज जा, तेरा हो जाएगा, फिर मैं जाऊंगा। कर सकते हो? दम है तो फिर साथ ही क्यों रहना है? क्योंकि दे आर द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर ऑफ यू। कल जब एक कंपनी आएगा, ये तुम्हारे साथ में खड़ा होकर लड़ाई करेगा, वो हर मुमकिन कोशिश करेगा तुमको ना मिले ताकि उसको मिले। और सोचो इंटरव्यू सिलेक्शन में लास्ट 2 बच्चे बचे हुए हैं और इंटरव्यूअर को एक सिलेक्शन करना है, याद रखो मारा पीटी में भी उतर जाओगे, याद रखो। तो यही है लाइफ का उसूल, आगे बढ़ना है लाइफ में, खुद का सुनना है, और सुनो, भीड़ में नहीं जाना। मेरे आज 25 साल हो गए इंजीनियरिंग कॉलेज स्टार्टिंग, मतलब पढ़ाई से 26 साल ही हो गया। जो बच्चा ना ये लीडरशिप करता है ना, वो जिंदगी में कुछ ना कुछ कर ही लेता है। ये हमें से याद है, वो कुछ कर लेगा, पॉलिटिक्स के दूसरे से कुछ भी करेगा, गुंडागर्दी करेगा, पैसा लेकिन कमा के करेगा। लेकिन तुम जैसे लोग, जैसे हम जैसे लोग, समझ गए ना, लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, हम सुन के उसके झुंड में चला जाता है ना, जिंदगी में झुंड में ही रहोगे। समझे कि तो अभी अलग होना, पूरा फोकस करो अपने करियर पे, पैशन अच्छा से पढ़ाई करो और फोकस करो कि तुमको यहाँ पे तुमने कॉलेज को पेमेंट किया है पढ़ने के लिए, तुम्हें पढ़ना तुम्हारा फंडामेंटल राइट है और यहाँ पे ग्रेसफुली यहाँ से एक नौकरी लेके निकल जाना है, ठीक है? तो तुम्हारा खुद का नाम रोशन हुआ, अपने पापा मम्मी का पैसा भी यूटिलाइज हो गया, कॉलेज को भी बेनिफिट मिला कि तुम्हें एक नौकरी मिला तो कॉलेज उसे काफी माइलेज अर्न करेगा। तो सब लोग विन विन सिचुएशन है, कोई लूजर नहीं है, कोई लूजर नहीं है, ठीक है? तो इसलिए इस सब चीज में फोकस करो। अगर तुम कॉलेज से नौकरी ना लेके जाते हो, उसका भी रिपरकशन में बताता हूँ। तुम बाहर जाके बोलोगे फालतू कॉलेज है, प्लेसमेंट नहीं दे पाया, हमको गुमराह किया, पैसा ले गया, बोलोगे कि नहीं? क्यों? अपने गलती छुपाने के लिए। पर ऑलमाइटी गॉड इज देयर, ही इज वाचिंग यू। एक तो तुमने यहाँ गलती किया, फिर कॉलेज को बदनाम किया और एक गलती की, फिर उस गलती को छुपाने के लिए और एक गलती कर रहे हो, और तुम स्लोली जिंदगी में गलती और कंप्लेन ही करते रहोगे लाइफ में, समझे कि नहीं? हमेशा लाइफ में कंप्लेन ही करते रहोगे, सक्सेस कभी नहीं मिलेगा। इसलिए फोकस करो अपने लाइफ में और अच्छे से पढ़ाई करो, दैट इज द होल रेजोल्यूशन, ठीक है? और जैसे कि मैंने कहा कि पहले तुम लोग एक फोकस करो, इस सेमेस्टर में एक स्किल ट्रेनिंग लेने के लिए सर्टिफिकेशन कर लो,
उसके बाद एक प्रोजेक्ट डेवलप करो, उसके बाद फिर पेड इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते चलो। एक साथ तुम 4-5 पेड इंटर्नशिप भी कर सकते हो, क्योंकि आजकल वर्चुअल मोड में हो रहा है। मेरे अंडर में कितने सारे बच्चे अभी जो लोग काम कर रहे थे, अभी महीने में 40-50 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। सर इन लोगों को मैंने बोला था कि तुम लोग इसमें बहुत टाइम मिलेगा, इफ यू वांट आई विल गोइंग टू टीच यू डेटा स्ट्रक्चर, बोला था ना मैंने। हाँ बोला ना, तो इनको नहीं छोड़िए सर, अभी एक काम कीजिए, कुछ मत मैंने करिए, बोला उनको ठीक है, उनको तो रियलाइज करने दीजिए। हम लोग नहीं मतलब सर टेलिंग द पॉइंट, यहाँ मैं नहीं, एवरीबॉडी इज देयर टू हेल्प यू, यू टेक द एडवांटेज आउट ऑफ दिस। तो वो तुम्हें जुडिशियसली सोचना पड़ेगा कि तुम्हें क्या करना है और क्या करने से तुम्हारा करियर बनेगा, ठीक मैं है। AWS का भी अभी बोला हूँ, काम वो भी खुला है, ठीक है। ऐसे करके सस्पिना मैडम है, तुम्हारे सिस्को के लोग गो देख, तो खाली आके इस मतलब ट्रेनिंग में आके पूछो कि क्या करना है, हमारे फ्यूचर के लिए क्या करना चाहिए, मैं बता दूंगा कि तुम ये चीज करो। करना है। अकॉर्डिंगली उसको कंप्लीट करने के बाद इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो, यू अर्न लॉट ऑफ मनी। लोग कर रहे हैं, मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। सर्च करो सुनील लुनिया बोल के, ध्रुवज्योति बोल के, चेक देयर लिंक्डइन प्रोफाइल, हाउ मच दे आर अर्निंग, नॉट लेस देन 50,000 पर मंथ। हाँ, वो तो Not फर्स्ट yet. सेमेस्टर में बीटेक कर रहे हैं 5th सेमेस्टर में, तुम लोग तुझसे बड़े हो एज में, तो ये सब से तुम्हें सीखना चाहिए, राइट। विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है ना। मैं सोचा कि इसके बाद